Welcome to our English class. This is your teacher, Mrs. Preeti, going to start fourth poem, A Bicycle Built for Two. First of all, I tell you about the author. Author is Carolyn Wells, was an American writer and poet remembered for her popular mystery, detective stories, children fictions, and humorous verse. Wells wrote numerous novels and collections of poetry such as Patty Fairfield's and a nonsense anthology. Her autobiography, The Rest of My Life, was published in 1937. Let's begin our poem. Read the following poem where two eels try to come up with a solution to a funny problem. ईल्स मीन्स टाइप ऑफ फिश. अब क्या है इस पोएम में, जो ईल्स हैं वो कोशिश कर रही हैं एक सॉल्यूशन निकालने की फनी प्रॉब्लम की. लेट्स बिगिन आवर पोएम. देयर वाज एन एम्बिशियस यंग ईल हु डिटरमाइंड टू राइड ऑन अ व्हील, बट ट्राई एज ही माइट he couldn't ride right in spite of order and zeal. Order means great enthusiasm, जोश होना. Zeal means excitement. Let's begin the explanation. In these lines, poet explained there was a ambitious young eel. Ambitious means determined, यानी अभिलाषी. Young eel थी who determined, who wished or who firmed to ride on a wheel. Wheel means here bicycle पर वो ride करना चाहती थी. He tried very hard, but he couldn't ride right. उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो राइड नहीं कर पाए. In spite of great enthusiasm and excitement, किसके बावजूद भी, एक्साइटमेंट होने के बावजूद भी, और क्या है, एंथुजियाज्म होने के, जोश होने के बाद भी वो राइड नहीं कर सकती थी. If he sat on the saddle to ride, his tail only pedaled one side. And I am sure you will admit that an eel couldn't sit on a bicycle saddle astride. Astride means with a leg on each side. Let's begin the explanation of this stanza. If the eel sat on the saddle or seat, saddle means seat of a bicycle. अगर क्या है, ईल उस सेडल पर बैठती बाइसिकल के ऊपर, हिज टेल कुड पेडल वन साइड, तो उसकी टेल क्या होती, पेडल करती एक ही साइड. आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट दैट एन ईल कुडंट सेट ऑन द बाइसिकल सेडल और सीट. और तुम एडमिट कर लेते, इस बात पे श्योर होते कि वो ईल नहीं बैठ सकती, बाइसिकल के ऊपर ईल नहीं बैठ सकती. और विद अ लेग ऑन ईच साइड, की हर एक साइड के ऊपर लेग रख के वो बाइसिकल पर नहीं बैठ सकती. आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. और इफ ही हंग ओवर द टॉप ही कुड गो बट ही नेवर कुड स्टॉप, फॉर ऑफ कोर्स इट इज क्लियर ही हैड नो वे टू स्टीयर, एंड अंडर द व्हील ही वुड फ्लॉप. फ्लॉप मीन्स फॉल, गिर जाना. If the eel sat over the top of the bicycle, अगर बाइसाइकिल के ऊपर वो बैठ जाती, बाइसाइकिल के ऊपर, he could go, अगर वो मूव भी करती, but no one could stop the bicycle, तो कोई भी उसकी बाइसिकल को नहीं रोक पाता. It is clear that he had no way to move the bicycle or steer, वो मूव नहीं कर पाती, कोई रास्ता नहीं था उसको आगे बढ़ने के लिए, स्टीयर करने के लिए. If he would राइड ऑन द व्हील, अगर वो बाइसिकल पे राइड कर लेती, ही में फॉल श्योरली, तो वो श्योरली क्या हो जाती, फॉल हो जाती, गिर जाती. His neighbor observing the fun said, I think that the thing can be done. If you will listen to me, you will quickly agree that two heads are better than one. It means poet want to say that his neighbor watching or observing the funny scene and said that it could be possible if you will listen me. And the neighbor gave an idea that it's better to sit two eels on one bicycle. अब neighbor था, उसको observe कर रहा था
इस फनी सीन को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने उसको एक आइडिया दिया, अगर तुम मुझे सुनोगे तो मेरे पास एक बेटर आइडिया है कि 2 ईल एक बाइसिकल पे हो तो बेटर है। नेक्स्ट स्टेंजा इज and this is my project, old chap, around our two waist. I will wrap this beautiful belt of bottle green felt and fasten it to firm with a strap. It means this is his project. The neighbor's waist and the eel's waist both will be wrapped. दोनों चीजों को क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा दोनों की वेस्ट को with beautiful bottle green, विथ ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन बेल्ट, ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन बेल्ट के साथ, एंड फेल्ट टाइड स्ट्रोंगली विद अ स्ट्रैप, और एक उसको क्या कर दिया जाएगा, टाई अप कर दिया जाएगा एक स्ट्रोंग बेल्ट के साथ, स्ट्रैप के साथ। सो दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। दिस डन विद अ डिग्निफाइड मैन, द टू स्क्विम्ड अप ऑन द मशीन एंड रोड गेली अवे, और एटलीस्ट so they say, who witnessed the wonderful scene. In these lines, poet wants to say that this can be done only a person, कि एक पर्सन की तरह ही एक पर्सन ही ऐसा कर सकता है, या पर्सन की जो अपीयरेंस होती है वही ऐसा कर सकता है। The two eels moved from side to side on a machine named bicycle, और जो 2 ईल्स हैं वो एक साथ साइड बाय साइड उस मशीन पर बैठ सकती हैं या मूव कर सकती हैं उस पर, और दे शुड स्टिक एंड टाई अप टुगेदर रोड अवे एंड दे कैन रीच देयर डेस्टिनी, और दोनों जो ईल हैं वो इकट्ठी बैठ के उसको रोड कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, मूव कर सकती हैं, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती है। सो जस्ट इमेजिनेशन, हु विटनेस दिस वंडरफुल सीन, तो इमेजिन करो कि आप सोचो इस चीज़ को कि इस वंडरफुल सीन का कौन विटनेस रहा होगा। हाउ दे मैनेज टू सेटल डाउन ऑन टू बाइसिकल, कैसे वो मैनेज कर पाएंगी 2 ईल एक बाइसिकल पर। तो ये एक फनी पोएम है, फनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है, फनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।